Our next topic is polysaccharide. Poly yani many, saccharide yani sugars. So when very large number of monosaccharide units are joined together, it is called a polysaccharide. A polysaccharide on hydrolysis gives many molecules of monosaccharide. So it contains very large number of monosaccharide units joined together by glycosidic bond. It mainly acts as food storage or structural cellulose. Cellulose is a polysaccharide that gives structural strength to plants, and starch is again a polymer, polysaccharide of glucose. Starch and cellulose are both made up of glucose, but starch is the major form in which food is stored within the plants, and cellulose gives structural strength to the plants. Glycogen is a carbohydrate stored in animal body, also called as animal starch because it is highly branched. Present in liver, muscles and brain. When body needs glucose, enzymes break the glycogen to glucose, and it is also found in yeast and fungi. So let us start with starch. So main storage polysaccharide of plants, it is polymer of alpha glucose. See, starch on hydrolysis gives alpha D glucose, and it consists of two components. Starch is actually a mixture. Starch is not a compound. Starch consists of two things, and two components are amylose and amylopectin. तो पहले तो ये याद रखो कि स्टार्च में दो चीज होती है. स्टार्च consists of two polymers of glucose. One is amylose and one is amylopectin. Both are polymers of glucose, alpha D glucose. amylose की बात करते हैं. It is water soluble component, whereas amylopectin आएगा वो water insoluble होगा. So it is water soluble component and constitutes about 15 to 20% of starch. It is long polysaccharide है और unbranched chain. Okay, there is no, see polymer करके एक chapter था जो फिर reduced syllabus में NCERT में से निकल गया polymer. तो if the monomers unite to give a polymer chain, ये 200, 300, 400, 500, 1000 मोनोमर की एक चेन है, तो इसको पॉलीमेरिक चेन बोलते हैं. तो इसको लीनियर अनब्रांच पॉलीमर चेन बोलते हैं. लेकिन अगर बीच में कहीं कहीं 20, 30, 40 यूनिट की एक और चेन, 20, 30, 35, 40 यूनिट की एक और चेन होती है, और ये 1000 मोनोमर यूनिट की चेन है, और उसमें बीच बीच में भी पॉलीमेरिक चेन है लेकिन छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई है, तो इसको ब्रांच पॉलीमर बोलते हैं. तो जो अमाइलोज है वो अनब्रांच्ड है, और अमाइलोपेक्टिन पढ़ेंगे उसमें ब्रांच आएगा. सो दिस इज लॉन्ग अनब्रांच चेन, और उसमें 200 से लेके 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं. एंड C1C4 जैसे माल्टोज में था, ओके, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है. तो एग्जैक्टली जो माल्टोज में किया था वही है. The only difference is इसका 1, इसका 4, इसका 1, इसका 4, इसका 1, इसका 4, next 1, next 4. तो ऐसे very large number of glucose units are joined together. हमने बोला कि इसमें अल्फा है. अल्फा यानी H ऊपर और ऑक्सीजन नीचे, और चौथे नंबर पे कार्बन पे ऑलवेज H ऊपर होता है और OH नीचे होता है, राइट. तो दिस इज द स्ट्रक्चर. ये 1 नंबर का कार्बन है, H ऊपर OH नीचे. ये 2 नंबर का कार्बन है जिसमें H ऊपर OH नीचे. ये 3 नंबर है जिसमें OH ऊपर होता है. ये 4 नंबर जिसमें OH नीचे होता है, और ये 5वां नंबर जिसमें CH2H ऊपर होता है, राइट. तो होप यू विल बी एबल टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर ऑन योर ओन, राइट. सो ऐसे वेरी लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर. सो इट इज नॉट दैट टफ. इफ यू विश, देखो बच्चों, ये था माल्टोस, C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो ये जस्ट 2 मैंने दिखाया. अब एक और, ओके, लेट मी यहीं में ऐड कर दूं. राइट, अगर मैं यहां
एक और अल्फा डी ग्लूकोज ऐड कर देता हूँ। अल्फा यानी H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH नीचे, OH H ऊपर OH नीचे, और यहाँ CH2OH ऑलवेज ऊपर होता है और H नीचे होता है। और फिर से इसका 1 और इसका 4, यानी कि अगर ये OH OH में रिमूव कर देता हूँ और यहाँ एक अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देता हूं, जैसे यहां था वैसे यहां, फिर से यहां मैं एक और ग्लूकोज यूनिट लगा देता हूं, इसका 1 इसका 4, एक मैं यहां लगा देता हूं, तो ऐसे जब वेरी लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स पॉलीमराइज लीनियरली विदाउट एनी ब्रांचिंग, C1C4 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 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी सभी के 1 नंबर के पे कार्बन पे H ऊपर और OH नीचे रहेगा, 4th पे तो H ऊपर OH नीचे ही होता है, तो इसको बोलते हैं एमाइलोज। दिस इज एमाइलोज, राइट। तो होप यू विल बी एबल टू राइट इट। एमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज वाटर सॉल्युबल था, अमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है, और ये 80 to 85% ऑफ स्टार्च में ये कंपोनेंट होता है। ये ब्रांच्ड पॉलीमर चेन है। अगेन इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों अल्फा डी ग्लूकोज से बने हैं। अमाइलोज लीनियर अनब्रांच पॉलीमर चेन है और इसमें ब्रांच पॉलीमर चेन है, ब्रांचिंग है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन, जैसा उसमें था C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ब्रांचिंग है, इट अकर्स एट कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6। तो ये स्ट्रक्चर देख के ही पता चलेगा कि क्या होता है। देखो, आप पहले सिर्फ इतना देखो, तो ये एग्जैक्टली एमाइलोज जैसा ही है, राइट। ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 है, और बिकॉज कार्बन नंबर 1 पे O नीचे है तो ये अल्फा है, कार्बन नंबर 4 पे तो OH नीचे ही होता है, तो ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ वन ग्लूकोज विथ कार्बन नंबर 4 ऑफ अनदर ग्लूकोज, C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, C1 और बाकी का C4, ये इसका C4 और उसके पीछे वाले का C1, राइट। तो ये लीनियर था जो मैंने अमाइलोज में देखा था। फिर कहीं एक जगह से, जैसे मैंने बोला कि ये लीनियर पॉलीमर चेन है, C1C4 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 C1C4, ऐसे लॉन्ग पॉलीमरिक चेन है। फिर बीच बीच में कहीं ब्रांचेस निकलती है, कहीं कहीं से ब्रांचेस निकलती है। तो ब्रांच कहाँ से निकलती है, लीनियर चेन के साथ कहाँ अटैच्ड होता है, राइट। तो ये जो 6 नंबर का कार्बन था CH2OH, राइट, ये 5th नंबर के कार्बन पे 6th नंबर का कार्बन ऊपर लिखते हैं CH2OH, और ये जहां से ब्रांच शुरू हुई, राइट, तो ये फिर 1 नंबर का कार्बन जिसमें OH नीचे है, राइट। तो इसको बोलते हैं C1C6 जहां ब्रांच निकली, और जो लीनियर है वो C1C4 है, राइट। तो लेट मी ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर सो दैट इसमें अमाइलोज भी आ जाएगा और अमाइलोपेक्टिन भी आ जाएगा। So I think 3 is enough to write in a linear chain. ये सब ग्लूकोज है और ये सब अल्फा ग्लूकोज है, राइट। यानी कि HOH HOH HOH, ये डिफरेंट कलर से दिखाया, ये एनोमेरिक कार्बन था। और 4th नंबर पे भी सेम कलर से दिखाते हैं, HOH HOH HOH, राइट।
तो और बाकी जो है इसमें HOH OHH और ऊपर CH2OH लिखते हैं, नीचे H लिखते हैं, ऊपर CH2OH लिखते हैं, नीचे H लिखते हैं, HOH H बच्चों थर्ड नंबर के कार्बन पे ये 1 नंबर है, ये 2 और ये 3 नंबर पे OHH ऐसा होता है, राइट। सो HOH OH H H और CH2OH, राइट। तो ये मैंने 3 ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट लीनियरली अटैच्ड होते हैं। C1 C4, ये C1 है और ये C4 है, ये 1 नंबर है एक ग्लूकोज का और ये 4 नंबर है दूसरे ग्लूकोज का। चलिए ये दोनों OH निकाल के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कर देंगे, ये दोनों OH निकाल के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसका इसके नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड होगा, इसका इसके नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड होगा, राइट। तो उसी कलर से बॉन्ड दिखाते हैं, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये C1 C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ये C1 C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ये C1 C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये अमाइलोज है। अब अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है कि एक पॉलीमर चेन होती है, उसमें कहीं एक जगह से ब्रांच निकलती है और वो ब्रांचिंग ये जो 6th नंबर का कार्बन है उसके साथ अटैच्ड होती है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, यहां मैं 2 ड्रॉ करूंगा। तो ऐसा ही एक लीनियर स्ट्रक्चर यहां मैंने ड्रॉ किया जिसमें C1 C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और ये भी अल्फा है, यानी कि H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH नीचे, OH H H OH और CH2OH और ये H, फिर ये अल्फा है तो HOH HOH OHH HOH और HCH2OH, जैसा मैंने एग्जैक्टली यहां ड्रॉ किया था वैसे ही यहां ड्रॉ किया। फिर ये C1 C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखा देता हूं, ओके, और ये भी यहां से पूरा पॉलीमर चेन होगा ऐसे, ये कलर के साथ, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहां भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। तो इस लाइन में मान लो 1000 मॉलिक्यूल है, 1000 मॉलिक्यूल है, लेकिन बीच में से ब्रांच निकलती है वो 30 20 15 20 25 30 40, तो यानी वो स्मॉल पॉलीमेरिक ब्रांच है। और ये ब्रांच जहां लगती है मेन चेन के साथ वो C1 C6, इसका 6 नंबर के कार्बन, इसका 1 नंबर के कार्बन, राइट। तो ये OH निकाल दिया, ये OH निकाल दिया और इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो ये बॉन्ड है, राइट। सो आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको ये आ जाएगा। और नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड इज सेल्यूलोज, एंड सेल्यूलोज इज ए सिंगल कंपाउंड। जैसे स्टार्च में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन होता है, लेकिन सेल्यूलोज है वो सिंगल कंपोनेंट से बना है और वो भी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। इट इज मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। About 50% of the plant kingdom is made up of cellulose, and it is the chief structural material inside the plants. It is the major component of the cell wall of the plant. Cell wall is made up of cellulose. It is straight chain polysaccharide composed of only beta D glucose unit. Cellulose can be hydrolyzed by emulsion enzyme which suggests that उसमें beta glycosidic bond है, जो सभी ग्लूकोज है वो बीटा है। Neither starch nor cellulose reduce Tollens and Fehling solution. Both are non-reducing polysaccharides. So it is made up of beta D glucose units only, and
C1 of one glucose is connected to C4 of another glucose. See, स्टार्च है, उसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन होता है, अमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन. अमाइलोज है, उसमें अराउंड 300 to 1000 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं. अमाइलोपेक्टिन में 1000 to maybe 2 or 3000 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, राइट. ये जो सेल्यूलोज है उसका मॉलिक्यूलर मास 50,000 से लेकर 5 लाख तक होता है. मॉलिक्यूलर मास. पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट स्पीशीज, सजेस्टिंग दैट उसमें 300 से लेके 3000 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं इन वन पॉलीमर चेन. से डिफरेंट सोर्स से आपको जो सेल्यूलोज मिलेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होगा. तो नेचर में जो सेल्यूलोज है उसमें 300 से लेके 3000 ग्लूकोज यूनिट तक होते हैं, राइट. और जैसे माल्टोज में C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज था, राइट. इसमें भी C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, लेकिन इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है. माल्टोज में अल्फा था, राइट. तो आई होप दैट आफ्टर ड्रॉइंग मेनी स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये कार्बन नंबर 1 है और ये बीटा है. सभी ग्लूकोज बीटा यूनिट्स है, तो यानी उसमें OH ऊपर रहेगा. और ये 4th कार्बन है जिसमें OH नीचे रहेगा, राइट. तो ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन वाला, ये C1 C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और बीटा लिंकेज है, राइट. तो एक बार फटाफट दे देते हैं, कोई टाइम नहीं लगेगा. बहुत प्रैक्टिस हो गई मेरी, आपको भी बाकी है. ये काफी सारे ग्लूकोज यूनिट्स हमको ऐसे लिखने हैं. ये सभी ग्लूकोज यूनिट है और सभी में ये जो 1 नंबर है उसमें OH ऊपर और H नीचे. 1 नंबर में OH ऊपर, H नीचे. 1 नंबर में OH ऊपर और H नीचे, ओके. और 4 नंबर में तो H और OH ऐसे ही होता है. H और OH ऐसे ही होता है 4 नंबर पे. H ऊपर और OH नीचे होता है, राइट. और बाकी आपको पता है कि सेकेंड नंबर में H OH, 3rd नंबर में OH H, और ये 6th नंबर है वो CH2OH और नीचे H, राइट. सेकेंड नंबर यानी HOH, 3rd नंबर यानी OH H, और इसमें H और CH2OH. वंस मोर HOH, OH H, H और CH2OH. तो ऐसे हमने 3 ग्लूकोज ऐसे दिखाए, राइट. ये कार्बन नंबर 1 है और ये 4 है. ये कार्बन नंबर 1 है और ये दूसरे का 4 है. फिर से इसका 1 और दूसरे का 4, इसका 4 और दूसरे का 1, ऐसे लाइन में रहेंगे. ऐसे आप दिखा सकते हो. फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे मिलता है? ये दोनों OH निकाल दो, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा. ये दोनों OH निकाल के बीच में ऑक्सीजन, ये OH निकाल के ऑक्सीजन, राइट. तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऐसा कर देंगे और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसको ऐसा कर देंगे, राइट. तो ये हो गया हमारा सेल्यूलोज, राइट. सो होप दिस इज क्लियर. Carbohydrates are essential for life in both plants and animals and forms major portion of our food. Honey has been used as an instant source of energy in Ayurveda, used as a storage molecule in form of starch in plants and glycogen in case of animals. Cell wall of bacteria and plants is made up of cellulose. Furniture is built from cellulose in form of wood. Wood contains about 45 to 50% cellulose. और कॉटन है, कॉटन फाइबर, इसमें 90
to 95% cellulose here. Cotton is mainly cellulose. 2 aldopentose, D-ribose or 2-deoxy-D-ribose are present in nucleic acid, DNA और RNA. इसी चैप्टर में आगे जाके आएंगे न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें भी ये दो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइबोज और डीऑक्सी-राइबोज, फाउंड इन बायोसिस्टम इन कॉम्बिनेशन विथ मेनी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के साथ भी कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड होते हैं, राइट. सो दीज आर द यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो विद दिस we finished the carbohydrate portion, right? And hope you have understood it very well. Thanks for watching the video.